will discuss today? We will discuss genitourinary fistula. Then we will discuss pelvic organ prolapse, uterine inversion, and the urinary incontinence. So, what is the fistula? Fistula is the abnormal connection between the two organs that is normally does not present. Okay. What is fistula? आपने सर्जरी में पढ़ा होगा fistula क्या होता है? It is an abnormal connection. Okay. As the name suggests, genitourinary fistula. तो ये कहाँ पे present होगा? Between the genital tract and the urinary tract. Okay. It will be present between the genital tract and the urinary tract. Types of the genitourinary fistula. Basically, there are 4 types of the genitourinary fistula. First is the vesicovaginal. Second is the urethrovaginal, vesicovaginal, urethrovaginal, uretrovaginal, and vesicouterine fistula. Okay. What is the meaning of vesicovaginal? Vesico is the bladder. And you know the meaning of vagina. So the fistula exists between the bladder and the vagina. This is the most common type of the genitourinary fistula. Image में देखो आप, this is the vesicovaginal fistula. Okay. Second one is the urethrovaginal. Urethrovaginal exists between the urethra and the vagina. Third one is the ureterovaginal, and the last one is the vesicouterine, that is between the uterus and the bladder. And this is the rarest type. Okay. This is basically seen after cesarean section. लेकिन आजकल क्या हो रहा है? Cesarean section are done very carefully. That's why they are the rarest type of genitourinary fistula. What we had discussed? We had discussed the genitourinary fistula is present between the genital tract and the urinary tract. Types कितने हैं? There are basically 4 types. Most common type is the vesicovaginal, that exists between the bladder and the vagina. Second one is the urethrovaginal. Third one is the ureterovaginal. And fourth is the vesicouterine fistula. Okay. First, we will discuss the vesicovaginal fistula. It exists between the bladder and the vagina. What are the most common causes of the vesicovaginal fistula? Basically, 2 broad causes. Because of obstetric cause and surgical cause. Okay. इसके 2 broad causes होते हैं, obstetric cause and the surgical cause. Obstetric cause occurs because of the obstructed and prolonged labor. What happened in the obstructed and prolonged labor? That urethra and bladder got stuck between vagina and pubic symphysis. Urethra and bladder got stuck between the vagina and pubic symphysis, that causes ischemic necrosis. And इसकी वजह से क्या होता है? Healing does not occur properly, and this results in the formation of the fistula. Okay. तो obstetric cause में क्या है? It occurs because of the obstructed or prolonged labor. Because fetal head के pressure की वजह से जो urethra और bladder है वो stuck कर जाता है between the vagina and the pubic symphysis. इसकी वजह से ischemic necrosis होती है और वहाँ पे proper healing नहीं हो पाती, जिसकी वजह से fistula बन जाता है. Okay.
नेक्स्ट इज द सर्जिकल कॉज. सर्जिकल कॉज में बेसिकली होता है बिकॉज आफ्टर द पोस्ट हिस्टेक्टमी. ओके, what are the clinical features? What are the clinical features of vesico-vaginal fistula? Clinical features are continuous dribbling of urine from the vagina. Okay, there is continuous dribbling of urine from the vagina. The patient is not able to hold urine. Okay, if there is small fistula, then able to hold small amount of urine. But if there is large fistula, then the patient is not able to hold urine. And there is no normal urination. You should remember this, that there is no normal urination and symptoms of UTI are present. Symptoms of UTI क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. तो मोस्ट कॉमन कॉज जो यहाँ पे होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द ई कोलाई. और सिम्टम्स ऑफ यूटीआई में क्या आएगा? फीवर हो सकता है पेशेंट को और डिसयूरिया हो सकता है. ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स में कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द वेजाइना एंड द पेशेंट is unable to hold urine and there is no normal urination and symptoms of UTI will be present. Okay, इसके बाद we will do the physical examination. Physical examination में क्या करेंगे? Basically, let me rub this. We will do the per speculum examination. Per speculum examination में what we will see? We will see the fistulous opening in the anterior vaginal wall. Okay, fistulous opening in the anterior vaginal wall. If this opening is small, it will be felt only digitally. If the opening is very small, then what we will see? Then then there is pooling of urine on the speculum. Then there is pooling of urine on the speculum. Physical examination में क्या देखेंगे? पर speculum examination करेंगे तो we will see the fistulous opening in the anterior vaginal wall. अगर opening large है, अगर small है तो उसको हम digitally feel कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा small है तो pooling of urine on the speculum. Let me rub this. Then we will discuss the investigation. Investigation में एक टेस्ट होता है 3 swab test. This is the OPD test. What we will do in the 3 swab test? This is a 3 swab test. Basically, I will explain this to you. This is the vagina and this is the bladder. Okay, this is the ureter, urethra. 3 swabs are inserted into the vagina. This is the swab number 1, swab number 2 and swab number 3. And bladder is filled with, fill the bladder with methylene blue. With methylene blue dye with the help of Foley's. Okay, then what we will observe? If all the 3 swabs are wet but not blue, ये मिथिलीन ब्लू जो डाई है दिस इज बेसिकली ब्लू कलर की होती है. अगर सारे 3 स्वैप्स वेट हो चुके हैं लेकिन नॉट विद ब्लू कलर, इट इज वेट, इट इज सोक्ड बिकॉज ऑफ यूरिन. या फिर फर्स्ट वाला वेट है, इट इज सोक्ड बिकॉज ऑफ यूरिन. तो इसका मतलब क्या हुआ? द फिस्टुलस ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द यूरेटर एंड द वेजाइना. ओके,
एंड वेजाइना। अगर सेकेंड वाला स्वैब ब्लू कलर का हो गया है, दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन द ब्लैडर एंड द वेजाइना। और अगर थर्ड स्वैब ब्लू कलर का हुआ है तो बिटवीन द यूरेथ्रा एंड वेजाइना। दिस इज द ओपीडी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, 3 स्वैब्स आर इंसर्टेड इन द वेजाइना। अगर फर्स्ट स्वैब इज सोक्ड विद यूरिन या फिर ओनली फर्स्ट स्वैब इज सोक्ड विद यूरिन, तो इसका मतलब क्या हुआ, द फिस्टुलस ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द यूरेटर एंड द वेजाइना। इफ अगर सेकेंड स्वैब इज स्टेन्ड लाइक ब्लू कलर, तो द फिस्टुलस ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द ब्लैडर एंड द वेजाइना। And if third swab is stained blue color, then the fistulous tract exists between the urethra and the vagina. Okay. Now the investigation of choice is the cystoscopy. This is the best investigation. इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे, इसमें हम फिस्टुला की ओपनिंग देख सकते हैं, कितने नंबर में है, उसकी प्रॉपर लोकेशन क्या है, इसको हम प्रॉपर विजुअलाइज कर सकते हैं थ्रू द सिस्टोस्कोपी। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द वेजाइको-वेजाइनल फिस्टुला इज द cystoscopy, and the urine culture is done to rule out the UTI. So these are the investigations done in the vesico-vaginal fistula. Let me rub this. And what will be the management of the vesico-vaginal fistula? सर्जिकल रिपेयर करेंगे। सर्जिकल रिपेयर में क्या है, इसमें हम वेजाइनल अप्रोच के थ्रू भी कर सकते हैं एंड थ्रू द abdominal approach. Basically what is the problem? Problem क्या है, this is the vagina, this is the bladder, यहाँ पे फिस्टुलस ट्रैक्ट बन गया है। तो क्या करना है हमें, हमें इस ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर देना है पूरा, और यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको सील कर देना है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द सर्जिकल रिपेयर। ओके, तो एक्सरसाइज द ट्रैक्ट and then seal the bladder and the vaginal opening separately. Okay, this is the vagina and this is the bladder. इसमें क्या करना है, इस ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर देना है पूरा, और यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको सील कर देना है। टाइम ऑफ द रिपेयर, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ द रिपेयर क्या है, आफ्टर 6 वीक एटलीस्ट। 6 वीक ऑफ व्हाट, 6 वीक ऑफ सर्जरी और 6 वीक ऑफ डिलीवरी। वाई 6 वीक, 6 वीक के बाद क्यों करेंगे, बिकॉज हीलिंग एंड इन्फ्लेमेशन शुड सबसाइड। जो इन्फ्लेमेशन हुआ था वहां पे शुड सबसाइड। अब 6 वीक्स तक क्या करेंगे, अब हमें सर्जरी तो करनी है 6 वीक के बाद, तो 6 वीक्स तक क्या करना है, 6 वीक तक इन द मीनवाइल you should treat the UTI and catheterize the bladder. In the meanwhile, what we have to do? We have to treat the UTI and catheterize the bladder. Okay? तो टाइम ऑफ द रिपेयर क्या है वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला का, आफ्टर 6 वीक्स एटलीस्ट। इसकी 2 टेक्निक होती है, एक चैजर-मोयर टेक्निक एंड लैट्सको टेक्निक। हम इसमें सिर्फ नाम देखेंगे। तो चैजर-मोयर टेक्निक जो होता है, दिस इज डन फॉर द ऑब्स्टेट्रिकल फिस्टुला एंड लैट्सको टेक्निक इज डन फॉर द पोस्ट सर्जिकल फिस्टुला और द स्मॉल फिस्टुला। लेट मी रब दिस। दिस इज डन फॉर द obstetrical fistula and the large fistula, and Ledsko technique or Ledsko repair is done for the post surgical fistula or the small fistula.
This is all about vesico-vaginal fistula. Next, we will discuss the urethro-vaginal fistula and the ureteric fistula. Urethro-vaginal fistula के symptoms में क्या आएगा? As the name indicate, the fistula exists between the urethra and the vagina. There is no constant dribbling of the urine. At the time of urination, urine from vagina and urethra. Okay? इसमें क्या है? There is no constant dribbling of the urine. At the time of urination, urine from vagina and the urethra. Then we have the ureteric fistula. आपको साइट याद होनी चाहिए. Most common site of ureteric fistula is the 2 cm lateral to the internal os, and the second most common site is the pelvic brim. Ureteric fistula का time of repair क्या है? As soon as it diagnosed, and the technique used is the Bory flap technique. This is technique. Okay? तो वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला हम कब रिपेयर कर रहे थे? आफ्टर 6 वीक एटलीस्ट जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे वो हील कर जाए इस वजह से. लेकिन यूरेट्रिक फिस्टुला हम कब ट्रीट कर रहे हैं? एज सून एज इट इज डायग्नोस्ड, एंड टेक्निक यूज इज द बॉरी फ्लैप टेक्निक. इसके अलावा एक टर्म होता है मेंसोयूरिया और मीनोयूरिया. इसका मतलब क्या हुआ? मेंसोयूरिया और मीनोयूरिया. हीमेटूरिया एट द टाइम ऑफ menses. Hematuria at the time of menses. ये कब कब हो सकता है? When there is endometriosis of bladder and when there is utero-vesical fistula. तो you should know the term mensoyuria और menoyuria. इसका मतलब होता है hematuria at the time of menses. ये कब कब हो सकता है? When there is endometriosis of the bladder and when there is utero-vesical fistula. The next topic is the pelvic organ prolapse. हमने क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट टॉपिक इज द जेनिटो-यूरिनरी फिस्टुला. फिस्टुला के बारे में मैंने आपको बताया कि दिस इज द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गन्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली. अब जैसे नाम से पता चल रहा है, एग्जिस्ट बिटवीन द जेनिटल ट्रैक्ट एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट. दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स: वेसाइको-वेजाइनल, यूरेथ्रो-वेजाइनल, यूरेट्रो-वेजाइनल एंड वेसाइको-यूट्राइन. मोस्ट कॉमन टाइप इज द वेसाइको-वेजाइनल एंड रेयरेस्ट इज द वेसाइको-यूट्राइन. वेसाइको-वेजाइनल फिस्टुला के 2 कॉजेज होते हैं, मेन ऑब्स्टेट्रिक एंड द सर्जिकल कॉज. इसमें इन्वेस्टिगेशन में 3 स्वैब टेस्ट करवाते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द सिस्टोस्कोपी. सर्जिकल रिपेयर इज डन आफ्टर 6 वीक एटलीस्ट, एंड 2 टेक्निक होती है या 2 टाइप की रिपेयर होती है, शाजर-मुयर टेक्निक एंड द लैट्सको टेक्निक. नेक्स्ट टॉपिक इज द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स. पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब क्या हुआ? एज द नेम सजेस्ट, इट इज द uterus is getting prolapsed into vagina. Okay. Pelvic organ prolapse is the protrusion of the pelvic organ into or out of the vaginal canal. Okay. Protrusion of the pelvic organ into or out of the vaginal canal. तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस. तो यूट्रस के 3 सपोर्ट्स होते हैं: मैकेनिकल सपोर्ट, मस्कुलर सपोर्ट एंड द लिगामेंटस सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट में क्या आता है? यूट्रस का एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन. ये आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ. मस्कुलर सपोर्ट में आता है पेल्विक एंड द यूरोजेनिटल डायफ्राम. पेल्विक डायफ्राम इज द मेन सपोर्ट. pelvic diaphragm is the main support. Okay. Pelvic diaphragm consists of pubococcygeus and iliococcygeus. Pubococcygeus muscle and iliococcygeus muscle. Basically, it consists of levator ani muscle. And levator ani muscle is made up of pubococcygeus and iliococcygeus, but not ichthyococcygeus. ये आपको याद रखना है कि levator ani muscle is made up of pubococcygeus and iliococcygeus, but not ichthyococcygeus.
इशियोकॉक्सीजियस यहाँ पर नहीं होती है, ये यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो मसल होती है दिस इज बेसिकली इनर्वेटेड बाय द पुडेंडल नर्व। ओके, अगर इफ देयर इज डैमेज टू पुडेंडल नर्व देन pelvic organ prolapse can occur। इससे क्या होगा, अगर इस पुडेंडल नर्व में कुछ इंजरी हो गई तो इससे क्या होगा, मसल टोन, जो मसल का टोन है वो लॉस्ट हो जाएगा और उससे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो pelvic diaphragm is the main support of the uterus, which is made up of the levator ani muscle. Levator ani muscle is consist of the pubococcygeus and iliococcygeus, but not ischiococcygous. You should remember this, that ischiococcygous is not the part of levator ani muscle, and these both muscle are innervated by the pudendal nerve. If अगर pudendal nerve में injury होती है then the muscle tone is lost and pelvic organ prolapse can occur. Okay, next is the urogenital diaphragm. अब urogenital diaphragm is made up of, let me rub this first. Urogenital diaphragm is made up of deep transverse perineal muscle, external urethral sphincter, superior fascia and the inferior fascia. Okay, these both are the muscular support of the uterus. It is made up of deep transverse perineal muscle, external urethral sphincter, superior fascia and the inferior fascia. Okay, बेसिकली जो मस्कुलर सपोर्ट ऑफ द यूट्रस है उसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज ब्लेस्ड, BLESD। ओके, तो ब्लेस्ड में क्या क्या आ सकता है, दिस इज द बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल, दिस इज द लिवेटर एनाई मसल, दिस इज द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, दिस इज superficial perineal transverse perineal muscle and this is deep transverse perineal muscle. They are the muscular support of the uterus. Vulvospongiosus muscle, levator ani muscle, external urethral sphincter, superficial transverse perineal muscle and deep transverse perineal muscle. Okay, next type of the support is the ligamentous support. Basically primary support of the primary ligamentous support of the uterus are the three ligaments, that is the uterosacral ligament, pubocervical ligament and the McInrod's ligament or the cardinal ligament. These three ligaments are known as the tri-radiate ligament. ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, सपोज दिस इज द cervix, this is the bladder, this is the rectum. ये फैन शेप जो लिगामेंट होता है दिस इज द cardinal ligament, cardinal ligament, and this is also known as the McInrod's and transverse ligament. ट्रांसवर्स लिगामेंट एंटीरियरली क्या होता है, प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट एंड पोस्टीरियरली होता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. These three are known as the tri-radiate ligament and they are the primary support of the uterus. इसके अलावा एक लिगामेंट होता है राउंड लिगामेंट, ये होता है सेकेंडरी सपोर्ट ऑफ द यूट्रस. तो सपोर्ट ऑफ द यूट्रस में क्या क्या आ गया, मैकेनिकल सपोर्ट बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, मस्कुलर सपोर्ट में पेल्विक एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड लिगामेंटस सपोर्ट में आता है यूट्रोसैक्रल, pubocervical and McInrod's ligament. Okay, then we will discuss the etiology of the pelvic organ prolapse. एक second. Okay, etiology of the pelvic organ prolapse. First is the traumatic deliveries. What happened in the traumatic deliveries? Like this, there is faulty instrumentation.
ओके, इफ देयर इज फॉल्टी इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सेप्स और वैक्यूम इज यूज्ड इनएप्रोप्रिएटली, इससे क्या होगा, पुटेंडल नर्व डैमेज हो सकती है, और पुटेंडल नर्व डैमेज होगी तो मस्कुलर टोन लॉस्ट होगा और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो सकता है। मल्टीपैरिटी में क्या है, मल्टीपैरिटी में मोर मसल गेट वीकेंड बिकॉज बेबी पुशेस अगेंस्ट द पेल्विक डायफ्राम। तो मल्टीपैरिटी में क्या है, मस्कुलर वीकनेस होगी क्योंकि बेबी पुशेस अगेंस्ट द पेल्विक डायफ्राम। प्रेसिपिटेट एंड प्रोलॉन्ग लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर में टू मच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, प्रेसिपिटेट लेबर में क्या होता है, टू मच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। एंड प्रोलॉन्ग लेबर में क्या होता है, बेबी हेड कंप्रेसेस द पेल्विक डायफ्राम, जिसकी वजह से इश्चीमिया हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एंड द स्पाइन बाइफिडा। लेट मी रब दिस फर्स्ट। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में आते हैं मार्फन सिंड्रोम एंड स्पाइन बाइफिडा। These both are the causes of congenital prolapse. Okay, spine bifida में क्या होता है, nerve damage to the, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर जो न्यूरल टोन होता है, न्यूरल टोन ऑफ pelvic diaphragm is not proper. And connective tissue disorder means a part of ligament and muscle, इस वजह से मस्कुलर डायफ्राम जो होता है वो वीक हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में आता है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में क्या हो सकता है, as we all know that connective tissue is a part of ligament and muscle, so there अगर connective tissue का disorder है तो फिर वहां पे डायफ्राम की या फिर लिगामेंट की वीकनेस होगी, इस वजह से क्या हो सकता है, pelvic organ prolapse हो सकता है। These two are the causes of congenital prolapse. Next cause is the menopause and next is the increased intra-abdominal pressure. Increased abdominal pressure में क्या हो सकता है, because of ascites, because of chronic cough. Okay, so these are the causes of pelvic organ prolapse. Next is the classification. सबसे पहले classify करेंगे vaginal prolapse and the uterine prolapse. If the vaginal prolapse is present anteriorly and if the along with the vaginal prolapse, if the bladder is prolapsed or the urethra is prolapsed, okay, this is known as the cystocele or the cystourethrocoele. If the upper 2/3 of the is prolapsed, if lower 1/3 is prolapsed, it is known as the urethrocoele. And posteriorly, enterocoele, if small intestine is prolapsed, rectocoele, if their rectum is prolapsed, and lower 1/3 is prolapsed, is the lax perineum. This is the classification of the vaginal prolapse. Next is the uterine prolapse. Then इसके लिए हमारे पास दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, शॉर्स क्लासिफिकेशन एंड द पॉप क्यू क्लासिफिकेशन. शॉर्स क्लासिफिकेशन इज द ओल्डर क्लासिफिकेशन. इसमें स्टेजेस हैं. स्टेज 1 में क्या होता है, डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू द वेजाइना. ओके, स्टेज 1 में डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू द वेजाइना. स्टेज 2 में है अप टू द इंट्रोइटस. टू द इंट्रोइटस का मतलब क्या हुआ, वेजाइनल ओपनिंग तक. थर्ड ये क्या है, आउटसाइड द इंट्रोइटस. एंड लास्ट में है प्रोसीडेंशिया. प्रोसीडेंशिया का मतलब क्या होता है, होल यूट्रस इज आउट. ओके, होल यूट्रस इज प्रोलैप्स्ड. प्रोसीडेंशिया का मतलब क्या होता है, होल यूट्रस इज प्रोलैप्स्ड. शॉर्स क्लासिफिकेशन इज द ओल्डर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इसमें स्टेज 1 क्या है, डिसेंट ऑफ सर्विक्स टू द वेजाइना. स्टेज 2 इज अप टू द इंट्रोइटस. स्टेज 3 is outside the introitus
एंड स्टेज 4 इज द प्रोसीडेंशिया, इसका मतलब क्या हुआ, होल यूट्रस इज प्रोलैप्स्ड. नेक्स्ट वी हैव द POPQ classification. This is the pelvic organ prolapse quantitative classification. Okay, let me rub this first. Here the reference point is POPQ classification में the reference point is the hymen. Okay, POPQ classification में reference point क्या है, hymen, and this classification is based on the distance from the hymen. Okay, POPQ classification is based on the distance from the hymen. Suppose this is the hymen, ये एक hymen है. In the stage 0 there is no descent. In the stage 1 more than 1 centimeter above hymen, this is यहाँ तक descent हुआ है, पर ये more than 1 centimeter. This is the stage 1. Stage 2 extend from 1 centimeter above to 1 centimeter below the hymen. Okay, या ये क्या था, this is the more than 1 centimeter. This is more than 1 centimeter. Stage 2 में क्या है, 1 centimeter above और 1 centimeter below the hymen. Okay, stage 3 में more than 1 centimeter beyond the hymen. This is more than 1 centimeter beyond. ये आपको समझ आ रहा है. स्टेज 1 में दिस इज द अबव हाइमेन. ओके, यू शुड सी दिस इज द अबव हाइमेन, एंड स्टेज 3 में दिस इज बियॉन्ड, दिस इज द बिलो हाइमेन, एंड स्टेज 4 में इवर्जन ऑफ द वेजाइना, दिस इज द कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ द वेजाइना. यूट्राइन प्रोलैप्स की दो क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट्स क्लासिफिकेशन एंड द POPQ क्लासिफिकेशन. दिस इज द न्यूअर क्लासिफिकेशन. दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द hymen. Okay, here the reference point is the hymen. Okay, next there is D. Lancey 3-level system of support. Okay, तो level 1 में क्या आता है, we will take the upper 1/3 of the vagina. Okay, support क्या क्या है level 1 में, upper 1/3 of the vagina के support है cardinal ligament and the uterosacral ligament. Okay, इस वाली इमेज में देखो, this is the cardinal ligament or sacrouterine ligament. Okay, this comes under the level 1 support. If there is defect in this type of support, then what will happen, there will be cervical prolapse, there will be enterocele, and there will be wall prolapse if there is defect in this. Okay, level 2 support में आता है vesico-vaginal septum, recto-vaginal septum and arcus tendineus fascia. यहाँ पे इस इमेज में देखिए, दिस इज द vesico-vaginal fascia, यहाँ पे होगा vesico-vaginal septum, दिस इज द recto-vaginal septum, और थर्ड इज द arcus tendineus fascia. This comes under the level 2 और the middle 1/3 of the vagina का support है. Okay, upper 1/3 of the vagina का support है cardinal ligament and the uterosacral ligament. सेकेंड का लेवल 2 और मिडिल 1/3 वेजाइना का सपोर्ट है vesico-vaginal and recto-vaginal septum and arcus tendineus fascia. If there is defect in this, then cystocele and urethrocoele will occur. लेवल 3 में lower 1/3 which is supported by the urogenital diaphragm, अभी हमने देखा पीछे. And next is the perineal body. It is the perineal body क्या है, this is the fibromuscular body which is present between the anal triangle and basically between the urogenital triangle. Okay, if there is defect in the level 3 of the support, then there will be urethrocoele and the laxed perineum. Okay, this is the D. Lancey 3-level system of support. ये आपने याद करना है कि लेवल 1 का सपोर्ट क्या है और डिफेक्ट होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, लेवल 2 का सपोर्ट क्या है, अगर डिफेक्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, और लेवल 3 का सपोर्ट क्या है और अगर डिफेक्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा. दिस इज द डी लैंसी 3-level सिस्टम ऑफ सपोर्ट. नेक्स्ट वी हैव द सिम्टम्स. एक बार हम देख लेते हैं शुरू से. पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हमने देख लिया, सिंपल जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज द प्रोट्रूजन ऑफ पेल्विक ऑर्गन इनटू
और आउट ऑफ द वेजाइनल कैनाल। सपोर्ट ऑफ द यूट्रस देख लिए, यूट्रस का सपोर्ट है मैकेनिकल सपोर्ट, मस्कुलर सपोर्ट एंड द लिगामेंटस सपोर्ट। आपने याद रखना है कि प्राइमरी जो लिगामेंटस सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। राउंड लिगामेंट इज द सेकेंडरी सपोर्ट, नॉट द प्राइमरी सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। इटियोलॉजी हमने देख लिया है। जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, दैट इज द मार्फन सिंड्रोम और द स्पाइन बाइफिडा, दे आर द कॉजेज ऑफ द कंजेनाइटल प्रोलैप्स। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। वेजाइनल प्रोलैप्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। उसके बाद अगर अपर 2/3 प्रोलैप्स कर रहा है along with the bladder, this is known as the cystocele, and lower 1/3 is known as the urethrocoele. पोस्टीरियर में अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3। यूट्राइन प्रोलैप्स में क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। शॉर्स क्लासिफिकेशन, दैट इज द ओल्डर क्लासिफिकेशन, एंड द POPQ, दैट इज द pelvic organ prolapse quantitative classification. Here the reference point is the hymen, and इसमें हम डिस्टेंस फ्रॉम द हाइमेन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज द डी लैंसीज 3 लेवल सिस्टम ऑफ द सपोर्ट। ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम आते हैं सिम्टम्स ऑफ द pelvic organ prolapse. Okay, first symptom is the something coming out of the vagina. Okay, second is the groin or back pain. ये क्यों होता है? because of stretching of the uterosacral ligament. Okay, next symptom is the difficulty urinating and defecating. अगर इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई भी हो सकता है। एंड द नेक्स्ट सिम्टम इज द डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द वीनस कंजेशन। ओके, वीनस कंजेशन से क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, अब जैसे ये जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो गया है इस तरीके से, तो यहाँ पे थाइज है, इसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से जो अल्सर बन गया है वो हील नहीं कर पा रहा है। ओके, तो डेक्यूबिटस अल्सर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वीनस कंजेशन, क्योंकि ब्लड सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। पैकिंग बाय एंटीसेप्टिक एंड द ग्लिसरीन, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर। सिम्टम्स क्या है? समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वेजाइना, दिस इज द बेसिक सिम्टम। इसके साथ साथ ग्रॉइन और बैक पेन होगा। डिफिकल्टी यूरिनेटिंग एंड डेफिकेटिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द सिस्टोसील, because of the rectocele, because of the enterocele, increased risk of UTI, decubitus ulcer because of the venous congestion. And management of decubitus ulcer is the packing by antiseptic and glycerine. Next we have the management. मैनेजमेंट में बहुत सारे सर्जिकल नेम्स हैं। यहाँ पे सिर्फ हम नेम्स देखेंगे, मैं आपको बस बेसिक चीजें बता दूंगी कि इसके अंदर क्या करते हैं। जो सर्जिकल उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ द पेशेंट इज यंग, नलीपेरस एंड इफ देयर इज कंजेनाइटल प्रोलैप्स। ओके, इफ द पेशेंट इज यंग, इफ द पेशेंट इज नलीपेरस एंड इफ देयर इज कंजेनाइटल प्रोलैप्स, व्हाट यू हैव टू डू? We will do the sling surgery. Okay, sling surgery is done with the help of Marcelline tape. Okay, अब दो टाइप की स्लिंग सर्जरी होती है, एंटीरियर स्लिंग सर्जरी एंड द पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी। एंटीरियर स्लिंग सर्जरी को बोलते हैं पुरांदरे सर्जरी। ओके, एंड पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी इज नोन एज द शिरोडकर सर्जरी। ओके, तो एंटीरियर स्लिंग सर्जरी में क्या करते हैं? प्रोलैप्स पार्ट इज अटैच्ड टू द रेक्टस शीथ। यू शुड नो दिस, दैट प्रोलैप्स पार्ट इज अटैच्ड टू द रेक्टस शीथ। दिस इज द यूट्रस, यहाँ पे रेक्टस शीथ होती है, तो स्लिंग के थ्रू इससे अटैच करते हैं प्रोलैप्स पार्ट को। दिस इज नोन एज द एंटीरियर स्लिंग सर्जरी। पोस्टीरियर स्लिंग में क्या करते हैं? द प्रोलैप्स पार्ट इज अटैच्ड टू द sacral promontory.
यहाँ पे सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, यहाँ से अटैच करेंगे इसको. दिस इज द पोस्टीरियर स्लिंग. एंड कौन से सैक्रल प्रोमोन्ट्री से करेंगे? राइट. ओके, थ्रू द मर्सिलियन टेप. जो ये पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी है, दिस मिमिक uterosacral ligament. Okay, if the patient is young, if the patient is nulliparous, and if there is congenital prolapse, we will do the sling surgeries. Sling surgery is done through the Marcelline tape. Okay, तो इसमें अगर आप anteriorly sling surgery को बोलते हैं पुरांदरे. This is the name of the surgery. Okay, this is the name of the surgery, पुरांदरे surgery. इसमें क्या करते हैं? रेक्टस शीथ से प्रोलैप्स पार्ट को अटैच करते हैं. पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी में इसमें इसका नाम है शिरोधकर सर्जरी. एंड इसमें जो प्रोलैप्स पार्ट इज अटैच टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, बेसिकली द राइट सैक्रल प्रोमोन्ट्री. इसके अलावा एक होता है विरकुड. विरकुड इज द कंपोजिट. कंपोजिट का मतलब क्या हुआ? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिरोधकर एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिरोधकर प्लस पुरांदरे. ओके, तो इसमें क्या करते हैं? राइट साइड में हम करते हैं शिरोधकर एंड लेफ्ट साइड में करते हैं पुरांदरे. आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपने बस इसमें नाम देख लेना है कि पुरांदरे में किससे अटैच करते हैं. पुरांदरे एंटीरियर स्लिंग है, पोस्टीरियर स्लिंग में शिरोधकर है, और इसमें सैक्रल प्रोमोन्ट्री से अटैच करते हैं. इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें नाम याद कर लेना है. और विरकुट क्या है? विरकुट इज द कंपोजिट सर्जरी. कंपोजिट का मतलब क्या हुआ? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिरोधकर एंड द पुरांदरे सर्जरी. ओके, और आपने देखना है कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं. इफ द पेशेंट इज यंग, नलीपेरस एंड कंजेनिटल प्रोलैप्स है, तो कौन सी सर्जरी करेंगे? दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इफ द पेशेंट इज यंग. इफ द पेशेंट इज फीमेल एंड नो डिजायर ऑफ फ्यूचर चाइल्ड बट शी वांट्स टू रिटेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है? इसमें करना है मैनचेस्टर और द फॉदरगिल. मैनचेस्टर और द फॉदरगिल. ओके, आपको इंडिकेशन जरूर देख लेने हैं कि यंग में कौन सा करना है. अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है फीमेल, नो डिजायर ऑफ फ्यूचर चाइल्ड बट शी वांट टू रिटेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें करना है मैनचेस्टर और द फॉदरगिल. इसके दो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज द सर्वाइकल एम्पुटेशन एंड सेकेंड इज द प्लाइकेशन ऑफ कार्डिनल लिगामेंट. अब इसका क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ. लेट मी रब दिस फर्स्ट. ओके, दिस इज द यूट्रस, दिस इज द वेजाइना. इसमें क्या करते हैं? सर्विक्स को एम्पुटेट करते हैं. बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द सर्विक्स, this part of the this is the ecto. Cervix is amputated. Okay, amputate कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे lots and lots of adhesions बन जाएंगे. Lots and lots of adhesions की वजह से क्या होगा? It act as the mechanical barrier. This is the first step. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? मैनचेस्टर के सर्वाइकल एम्पुटेशन करना है. एंड सेकेंड में प्लाइकेशन ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट. प्लाइकेशन का मतलब क्या हुआ? टेक द कार्डिनल लिगामेंट. हमने अब देखा था कार्डिनल लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट था? सर्विक्स से लेकर लेटरल पेल्विक वॉल तक था. ठीक है, तो जो यहाँ पे प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है, दे आर नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग, तो इसमें थोड़ा सा कार्डिनल लिगामेंट को प्लाइकेट कर देते हैं एंटीरियर साइड पे. ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द मैनचेस्टर ऑपरेशन. फिर इसका एक मॉडिफिकेशन है. शिरोधकर ने इस फॉदरगिल में एक मॉडिफिकेशन किया. उसने क्या किया? उसने बोला सर्विक्स को एम्पुटेट नहीं करना है. ओनली सेकेंड स्टेप, दैट इज द प्लाइकेशन ऑफ कार्डिनल लिगामेंट इज डन. ओके, तो शिरोधकर मॉडिफिकेशन ऑफ फॉदरगिल में क्या है? ओनली सेकेंड स्टेप इज परफॉर्म्ड. नेक्स्ट इज द एल्डरली फीमेल डज नॉट डिजायर फ्यूचर प्रेगनेंसी. ओके, अब उसको प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, फीमेल एल्डरली है,
तो उसके लिए हम करेंगे वॉर्ड मायोस वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। बच्चों आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने बस नाम याद कर लेना है। ओके, एल्डरली फीमेल डज नॉट डिजायर फ्यूचर प्रेगनेंसी, इसके लिए हम क्या करते हैं, वॉर्ड मायोस वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, इसके लिए करते हैं वेजाइनल अप्रोच के थ्रू जाते हैं और हिस्टेरेक्टमी करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी, पेल्विक फ्लोर रिपेयर एंड सैक्रोस्पाइनस कॉल्पोप्लेक्सी। ओके, सैक्रोस्पाइनल कॉल्पोप्लेक्सी में क्या करते हैं, द वेजाइना सस्पेंडेड टू द सैक्रम विद द हेल्प ऑफ मेश, is suspended to the sacrum with the help of mesh. तो अगर कोई elderly female है and she does not desire to have pregnancy, then ward Mayo's vaginal hysterectomy can be done. Okay, if the female is more than 60 years but she is unfit for hysterectomy, तो अब क्या करना है, अब करना है लीफोल्ड कॉल्पोक्लाइसिस। अब कॉल्पोक्लाइसिस में क्या करना है, बेसिकली क्लाइसिस का मतलब होता है क्लोजर, तो कॉल्पो का मतलब क्या हुआ, कॉल्पो इज द वेजाइना, और क्लाइसिस का मतलब क्या हुआ, क्लोजर। तो इसमें मेन जो इसका बेसिक है वो क्या है, क्लोजर ऑफ द वेजाइना। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप से पहले सपोज दिस इज द वेजाइना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूरेटाज एंड स्क्रेपिंग ऑफ द बोथ द वॉल्स। ओके, यहाँ पे पूरा स्क्रेप कर देंगे वॉल को, एंड देन द डीन्यूडेड जो एपिथेलियम है उसको क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली लीफोल्ड कॉल्पोक्लाइसिस में फर्स्ट स्टेप है curettage and scraping of the vaginal epithelium, then anterior and posterior wall are closed. If the next case क्या है, if the prolapsed during pregnancy and perpurium, then we will use the ring pessary. This is ring pessary क्या है, this is only for the temporary relief. Okay, तो अगर प्रोलैप्स प्रेगनेंसी में हो गया है या परफ्यूरियम में है, देन द रिंग पैसरी इज यूज्ड। रिंग पैसरी क्या होती है, एक इस तरीके से होता है, इसको इंसर्ट करते हैं एट द लेवल ऑफ ईशियल स्पाइन। ये क्या करता है, इट बेसिकली एक्ट एज द मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स। वॉल्ट क्या होता है, मैं बताती हूँ वॉल्ट क्या होता है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। जैसे कि दिस इज द यूट्रस, दिस इज द वेजाइना। इफ द हिस्टेरेक्टमी इज डन, दैट इज यूट्रस एंड सर्विक्स इज रिमूव्ड, देन वेजाइना विल बी लेफ्ट। तो द वेजाइनल स्टम्प जो होता है, वेजाइनल स्टम्प है, इसको बोलते हैं वॉल्ट। ओके, ये जो पार्ट है ये आपने पूरा रिमूव कर दिया है, ऐसा करके बचा हुआ है, दिस इज नोन एज द वॉल्ट। अब ये भी प्रोलैप्स कर सकता है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास है मेश सैक्रल कॉल्पोपेक्सी, हमारे पास है मेश सैक्रल कॉल्पोपेक्सी, यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन एंड सैक्रोस्पाइनल फिक्सेशन। इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि बेसिकली जो वॉल्ट है उसमें सैक्रम से उसको अटैच करना है विद द हेल्प ऑफ मेश। ओके, एंड सैक्रोस्पाइनल फिक्सेशन करना है विद द हेल्प ऑफ स्लिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स। नेक्स्ट वी हैव द कीगल्स एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, बेसिकली दी आर द pelvic floor exercises. They are done to strengthen the pelvic floor muscle. Okay, next is the vaginal prolapse. Vaginal prolapse में क्या है, हमने देखा था सिस्टोसील एंड द यूरेथ्रोसील। सिस्टोसील का मतलब क्या हुआ, बल्ज ऑफ ब्लैडर इनटू द वेजाइना। ओके, एंड यूरेथ्रोसील में बल्ज ऑफ ब्लैडर इनटू द वेजाइना और आउट ऑफ द वेजाइना। ओके,
तो अब इसमें क्या है, आपको पता है एनाटॉमी में हमने देखा था, दिस इज द वेजाइना एंड द यूट्रस, दिस इज द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, यहाँ पे है रेक्टम। ओके, तो अब यहाँ से ये, यहाँ पे कोई डिफेक्ट हुआ, एंटीरियर वेजाइनल वॉल में कोई डिफेक्ट हुआ, तो यहाँ से ये प्रोलैप्स कर गया। ओके, तो इससे क्या होगा, इसमें अब हमने देखा कि ये जो सिस्टोसील और यूरेथ्रोसील हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द एंटीरियर वेजाइनल वॉल। तो इसको मैनेज करने के लिए वी हैव द एंटीरियर कॉल्पोरेफी। एंटीरियर कॉल्पोरेफी क्या है, दिस इज द एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिपेयर। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ये जो यहाँ पे डिफेक्ट हुआ है इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फेशिया वगैरह अटैच करते हैं जिससे ये स्ट्रेंथन हो जाए। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द एंटीरियर कॉल्पोरेफी। देन वी हैव द एंटेरोसील। एंटेरोसील को रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, मॉस्कोविट रिपेयर, हेल्बेन रिपेयर एंड मैकल कल्डोप्लास्टी। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसका बेसिक मैकेनिज्म है, वी विल ऑब्लिटरेट द पाउच ऑफ डगलस। ओके, एंटेरोसील का मतलब तो पता है आपको, दिस इज द बल्ज ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द वेजाइना। मॉस्कोविट्स रिपेयर, हेल्बन रिपेयर एंड मैकल कल्डोप्लास्टी। ओके, तो इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल बिहाइंड दीज इज द टू ऑब्लिटरेट द पाउच ऑफ डगलस। ओके, तो मॉस्कोविट में हम बस क्या करते हैं, वी यूज द पर्स स्ट्रिंग सूचर, we use the purse string suture. हेल्बन रिपेयर में we use the sagittal suture. Okay, and मैकल कल्डोप्लास्टी में attach the pouch of Douglas to the sacral ligament. मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बस आपने याद रखना है कि कौन जो नेम्स हैं, लाइक मैक मॉस्कोविक, हेल्बन एंड मैकल कल्डोप्लास्टी, ये कौन से किसमें करते हैं, दिस इज डन इन द एंटेरोसील। इन सब का बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि हमें जो पाउच ऑफ डगलस है उसको ऑब्लिटरेट कर देना है। ओके, मॉस्कोविट रिपेयर में पर्स स्ट्रिंग सूचर के थ्रू ऑब्लिटरेट करते हैं, हेल्बन रिपेयर में थ्रू द सजाइटल सूचर्स, एंड मैकल कल्डोप्लास्टी में द पाउच ऑफ डगलस इज अटैच्ड टू द सैक्रल लिगामेंट। Then we have the lax perineum. Then we will do the posterior colpoperenniorrhaphy. This is same as the anterior colporrhaphy. Here the defect occurs in the posterior wall. Okay, तो इसमें posterior wall में defect है, तो यहाँ पे posterior colpoperenniorrhaphy करेंगे। Next we have the inversion of uterus. यहाँ पे हमने सिम्टम्स देख लिए थे। मैनेजमेंट में आपने याद रखना है कि अगर यंग नलीपेरस कंजेनाइटल प्रोलैप्स है तो स्लिंग सर्जरीज करते हैं। स्लिंग में एंटीरियर स्लिंग और पोस्टीरियर स्लिंग का नाम रट लेना है। और विरकुट किसको बोलते हैं, दैट इज द कंपोजिट सर्जरी। composite like composite of like combination of anterior and posterior sling. Okay, and if the female is female is not desire of having future child, then we will do the Manchester. And if the female is old, then we will do the Ward Myos vaginal hysterectomy. And if the patient is more than 60 years but she is unfit for hysterectomy, then Lee Ford colpoclysis. Okay, तो बेसिकली 4 क्राइटेरिया हैं। अगर यंग नलीपेरस है तो स्लिंग सर्जरी करना है, अगर फीमेल है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल रिटेन करना है तो मैनचेस्टर एंड फोदरगिल, अगर एल्डरली फीमेल है तो हिस्टेरेक्टमी करना है, और अगर 60 ईयर से ज्यादा एल्डरली फीमेल है लेकिन हिस्टेरेक्टमी नहीं हो सकता तो ली फोर्ड कॉल्पोक्लाइसिस करना है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया, एक और कंडीशन है, अगर प्रेगनेंसी या परप्यूरियम में प्रोलैप्स हो गया है तो रिंग पैसरी का इस्तेमाल करना है। बस इतनी 5 चीजें आपको याद रखनी है। और कीगल एक्सरसाइज करवा सकते हैं दे, बिकॉज ये हमने देखा था बेसिक मैकेनिज्म क्या था इसमें कि जो पेल्विक फ्लोर मसल है वो वीकेंड हो गई हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे हैव टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल। उसके बाद वजाइनल प्रोलैप्स है, इसका हमने मैनेजमेंट देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या है, यूट्रस टर्न इनसाइड आउट, फंडस प्रोलैप्सिंग थ्रू द सर्विक्स, फंडस प्रोलैप्सिंग थ्रू द सर्विक्स। एक होता है प्रोलैप्स, एक होता है इन्वर्जन। अगर
यूट्रस पूरा ऐसे करके प्रोलैप्स कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा, दिस इज नोन एज द प्रोलैप्स। लेकिन अगर यूट्रस उल्टा हो गया, बेसिकली जो फंडस वाला पार्ट है वो उल्टा करके इस तरीके से प्रोलैप्स करेगा, दिस इज नोन एज द इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, प्रोलैप्स पार्ट इज द फंडस, दिस इज नोन एज द इन्वर्जन। ओके, तो इन्वर्जन बेसिकली एक्यूट इन्वर्जन हो सकता है एंड क्रोनिक इन्वर्जन हो सकता है। तो एक्यूट इन्वर्जन कब होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, if there is placenta accreta, if there is mismanagement of the third stage of labor, then acute inversion can occur. Okay, acute inversion है at the time of delivery and chronic inversion क्या है, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड है या पॉलिप है, इसकी वजह से क्रोनिक इन्वर्जन हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से है, अब ये इतना हैवी है कि इसने फंडस को नीचे की तरफ पुल कर लिया है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। इसको मैनेज करने के लिए दो अप्रोच हैं, हॉल्टेन एब्डोमिनल अप्रोच एंड द स्पिनल वेजाइनल अप्रोच। हॉल्टेन एब्डोमिनल अप्रोच में बस आपने नाम याद रख लेना है कि अगर एब्डोमिन के थ्रू अप्रोच करेंगे तो सर्जरी का नाम है हॉल्टेन, और वेजाइना के थ्रू अप्रोच करेंगे तो सर्जरी का नाम है स्पिनल। ओके, तो हॉल्टेन एब्डोमिनल अप्रोच एंड द स्पिनल वेजाइनल अप्रोच। हॉल्टेन में क्या करते हैं, मिड लाइन इंसिजन देंगे। ओके, इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग प्रेजेंट है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग को रिमूव करेंगे और उसके बाद यूट्रस को उसकी जगह पे वापस पहुंचा देंगे। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द हॉल्टेन एब्डोमिनल अप्रोच। एंड इफ वी यूज द वेजाइना टू अप्रोच देन इट इज नोन एज अ स्पिनल। तो आपने बेसिकली बस नाम याद रख लेना है, हॉल्टेन क्या है और स्पिनल क्या है। दिस इज द नेम ऑफ द सर्जरीज यूज्ड फॉर द इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इसमें बहुत सारे नाम है, बच्चों परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे करके इसको याद करेंगे तो आपने याद हो जाएगा। Okay, the last topic we will take is the urinary incontinence. Okay, what is the urinary incontinence? Urinary incontinence होता है, वो भी ये भी सब ऑटोमेटिकली माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लो। ओके, urinary incontinence. Urinary incontinence is the involuntary leakage of the urine. आपको नाम से पता चल रहा है, this is the involuntary leakage of the urine. अब ये why in women, women में क्यों हो रहा है, because of the childbirth, because of the increasing age, क्या होता है, because of childbirth, because of increasing age, जो pelvic muscles हैं जो सपोर्ट करती हैं यूरेथ्रोवेजाइकल एंगल को, वो वीक हो जाती हैं। मैं बताऊंगी अभी क्या है, pelvic muscle get weakened. ओके, तो इसमें टाइप्स क्या हैं, बेसिकली इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड द अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा दो मतलब तीन टाइप्स और होते हैं, दैट इज अ मिक्स टाइप, फंक्शनल टाइप एंड बाईपास, बट दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड द अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अकर, this is the most common type in women, basically occur in the 50th decade of life. Okay, and urgency incontinence occur most common in the older woman. Okay, इसके अलावा मिक्स टाइप है, मिक्स टाइप में क्या होगा, अगर स्ट्रेस और अर्जेंसी दोनों प्रेजेंट है। फंक्शनल क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम लाइक एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। Okay, and then we have the bypass because of any fistula. ठीक है, तो टाइप्स में क्या है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड द अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस क्या है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन एसोसिएटेड विद अर्जेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, पेशेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी यूरिन पास करने की, और बाय द टाइम द पेशेंट रीचेस द वॉशरूम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इज पास्ड। ओके, तो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में क्या है,
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज है यूरिन पास करने की, और जैसे ही वो पहुंचेगा वॉशरूम तक, पहुंचेगी वॉशरूम तक, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इज पास्ड. ओके, दिस इज द अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. व्हाई इट अकर्स? इट अकर्स बिकॉज ऑफ डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी. तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन देख लेते हैं. ओके, तो फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन में यहाँ पे क्या हुआ देखिए, दिस इज द फुल ब्लैडर. यहाँ पे फुल ब्लैडर प्रेजेंट है. अब फुल ब्लैडर प्रेजेंट है तो वो सिग्नल भेजेगा, तो इसके जो स्ट्रेच रिसेप्टर ना, स्ट्रेच रिसेप्टर वो स्टिमुलेट होंगे, और स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो सिग्नल भेजेंगे सैक्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ओके, वहां से पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, और उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर का विद द डेट्रूसल मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ओके, तो फुल ब्लैडर है, वहां से स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो वहां से सिग्नल भेजेंगे. ओके, सैक्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को, वहां से पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आएगा, वहां से कॉन्ट्रैक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर का विद द हेल्प ऑफ डेट्रूसर मसल और रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ओके, तो दिस पार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक. सीएनएस क्या कंट्रोल करता है? सीएनएस कंट्रोल करता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वाले पार्ट को. ओके, तो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? बिकॉज ऑफ डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी. डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी किस वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ यूटीआई, बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज, बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. बेसिकली द लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी की वजह से ये हो सकता है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इज द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड द ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों लेंगे? क्योंकि they reduce the involuntary contraction by blocking the action of acetylcholine. What they do? They reduce the, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो रही है, डेट्रूसर जो है वो ओवरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा? दे रिड्यूस द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन बाय ब्लॉकिंग एसिटाइलकोलिन. ओके, जो एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. इसको ब्लॉक करने की वजह से हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एक एग्जांपल है ऑक्सीब्यूटाइनिन. इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द ऑक्सीब्यूटाइनिन. नेक्स्ट द ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस में क्या करना है? उस पेशेंट को आपने समझाना है कि कुछ टाइम पीरियड आपको सेट कर लेना है, और एंड शी शुड रेगुलरली गेट अप एंड द पास यूरिन. ओके, तो पेशेंट का यूरिन पहले तो देखना है कि वो कितने कितने टाइम पे यूरिन पास करती है, और वहां हमें उसको मतलब ऐसा कि ओवर ब्लैडर की जो फुल नहीं होने देना है, उसको बता देना है कि यू शुड रेगुलरली गेट अप एंड पास यूरिन. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द increased intra-abdominal pressure. It occurs because as in when the patient sneezes, when the patient cough or the laugh. इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं, यूरेथ्रोवेसिकल एंगल इज लॉस्ट एंड इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डिफेक्ट. ओके, इंट्रिंसिक और द इंटरनल स्फिंक्टर डिफेक्ट. क्या होता? दिस इज द ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा. ओके, यहाँ पे एक एंगल होता है, दिस इज नोन एज द यूरेथ्रोवेसिकल एंगल. दिस इज द ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा. बेसिकली 100 डिग्री का ये एंगल होता है, तो ये एंगल लॉस्ट हो जाता है. बेसिक मैकेनिज्म पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसमें यूरेथ्रोवेसिकल एंगल लॉस्ट हो जाता है और इंट्रिंसिक स्फिंक्टर का डिफेक्ट होता है. ठीक है, अब ये लॉस्ट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वीक सपोर्ट टू यूरेथ्रा. ये एंगल लॉस्ट हो गया, यहाँ पे से स्ट्रेटेंड हो गया. इसकी वजह से क्या होता है? यूरेथ्रा
की हाइपर मोबिलिटी हो जाती है, यूरेथ्रा की हाइपर मोबिलिटी हो जाती है। इस वजह से जो ब्लैडर नेक है वो डिसेंड कर जाता है और यूरेथ्रोवेजाइकल एंगल स्ट्रेटेंड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 100 डिग्री का एंगल था। यहाँ पे यूरेथ्रा की हाइपर मोबिलिटी हुई क्योंकि ब्लैडर का सपोर्ट वीक हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रेटेंड कर जाता है और इस वजह से स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स, फर्स्ट आई विल रब दिस। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स विद द स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? बेसिक मैकेनिज्म जो है उसमें क्या है, इसमें बस यही होता है कि जो पेल्विक डायफ्राम, जो पेल्विक सपोर्ट है यूरेथ्रा का, वो वीक हो जाता है। This can occur because of increasing age, because of the parity, obesity, diabetes, chronic कफ में क्या है, इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर है। ठीक है, प्रीवियस पेल्विक सर्जरी में अगर हमने नर्व डैमेज कर दिया तो इस वजह से भी हो सकता है। और मेडिकेशंस में कौन कौन सी मेडिकेशंस हो सकती हैं? कोलिनर्जिक ड्रग्स और अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स आर यूज्ड टू ट्रीट द हाई बीपी। अल्फा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है? दे बेसिकली रिलैक्सेस द मसल। ओके, इसकी वजह से ये हेल्प करता है टू एम्प्टी द ब्लैडर। तो अगर कोई पेशेंट अल्फा ब्लॉकर पे है हाई बीपी का, तो उसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो अगर आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं पेशेंट की, तो उसे ये जरूर पूछना है कि आप कोई मेडिकेशन तो नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज द इवेल्युएशन। बच्चों, दिस इज द लास्ट स्लाइड। अब आपने इवेल्युएशन में क्या क्या करना है? हिस्ट्री आपने पूछ लेना है उससे। नेक्स्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन, दिस इज एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है? आप पेशेंट को कॉफ करने को बोलेंगे, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन विल बी पास्ड। ओके, उसके अलावा हम टेस्ट कर सकते हैं क्यू टिप टेस्ट एंड द बोनीज टेस्ट। दिस टेस्ट इज डन टू असेस द यूरेथ्रोवेजाइकल हाइपर मोबिलिटी। ओके, तो हम दोनों टेस्ट देखते हैं कि क्या क्या करवाते हैं हम। क्यू टिप टेस्ट में क्या, लेट मी रब दिस। एक इंस्ट्रूमेंट होता है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर, दिस इज यूज्ड टू असेस द यूरेथ्रोवेजाइकल एंगल। ओके, तो क्यू टिप टेस्ट में क्या करते हैं? कॉटन प्लग इज इंसर्टेड, द कॉटन प्लग इज इंसर्टेड इनटू अप टू द यूरेथ्रोवेजाइकल जंक्शन and the patient is asked to strain. Okay, and angle is measured. Okay, तो क्यू टिप टेस्ट में क्या करते हैं? क्यू टिप टेस्ट में कॉटन प्लग इज इंसर्टेड and the patient is asked to strain and the angle is measured. ओके, लेकिन ये टेस्ट आजकल परफॉर्म नहीं करते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है बोनीज टेस्ट। बोनीज टेस्ट में क्या करते हैं? वी विल डू द पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? हम इन फिंगर इंसर्ट करेंगे और जो एंगल स्ट्रेटेंड हो गया था ऐसे करके, उसको हम फिंगर के थ्रू ऊपर पुश करेंगे और फिर पेशेंट को बोलेंगे कफ करने को। तो उससे क्या होगा? जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम है वो रिलीफ होंगे। तो क्यू टिप टेस्ट एंड द बोनीज टेस्ट इज परफॉर्म्ड। इसका ट्रीटमेंट में क्या आता है? ट्रीटमेंट इज द पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है कैलीज प्लाइकेशन। कैलीज प्लाइकेशन में क्या करते हैं? दिस इज द ब्लैडर, दिस इज द यूरेथ्रा। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको इससे सूचर कर देते हैं। तो अप्लाई द सूचर इन कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द यूरेथ्रा। ये आजकल परफॉर्म नहीं करते हैं कैलीज प्लाइकेशन। आपको बस पता होना चाहिए कैलीज प्लाइकेशन किस में करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कॉल्पो सस्पेंशन सर्जरीज। ये होता है, इसमें दो टाइप के हैं, MMK प्रोसीजर, मार्शल मार्शेटी क्रांस प्रोसीजर एंड बर्श कॉल्पो सस्पेंशन।
MM के प्रोसीजर में क्या करते हैं, इसको कॉल्पोसस्पेंशन को बोलते हैं रेक्टोप्यूबिक यूरेथ्रोपेक्सी। ओके, रेक्टोप्यूबिक का मतलब क्या हुआ, ये अप्रोच, क्योंकि रेक्टोप्यूबिक अप्रोच होता है इसमें, ठीक है। और यूरेथ्रोपेक्सी का मतलब क्या है, इसमें हम यूरेथ्रा को हिंज करते हैं, हिंज द यूरेथ्रा। ओके, तो इसमें MM की एंड बर्श में कौन सा पार्ट होता है यूरेथ्रा का, इसमें प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा लिया जाता है। ये आपने याद रखना है कि MM के और बर्श में प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा लिया जाता है। MM के में क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा को सस्पेंड कर देते हैं सिंपली विथ द प्यूबिक बोन। ओके, कौन से पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को, प्रॉक्सिमल पार्ट को। और बर्श में प्यूबिक बोन की जगह इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट में सस्पेंड करते हैं। ओके, तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज सस्पेंडेड टू द इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट। आजकल कॉल्पो सस्पेंशन सर्जरीज की जाती हैं, ठीक है। मार्शेटी क्रांट्स प्रोसीजर होता है, इसमें द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ urethra is suspended to the pubic bone, and Burch colpo suspension में it is suspended to the iliopectineal ligament. Burch is better, okay, क्योंकि pubic bone की वजह से ऑस्टाइटिस हो सकती है, तो इसका एक साइड इफेक्ट है कि इस पेशेंट को ऑस्टाइटिस हो सकती है, इसलिए ये वाला प्रोसीजर नहीं किया जाता। इसके अलावा एक और लास्ट इज द मिड यूरेथ्रल सर्जरीज, इसमें आता है ट्रांस वेजाइनल टेप एंड ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप। इसमें आपने कुछ नहीं याद रखना है, बस इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट लिया जाता है मिड यूरेथ्रल